आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 और उसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं PWL_India। आप YouTube पर इसको देख सकते हैं, Instagram पर भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और बेशक मुकाबला हरियाणा थंडर्स 5-0 की निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका हो, लेकिन अभी बहुत कुछ है परविंदर वर्सेस दीपक के मुकाबले में। Ladies and gentlemen, it's time for us to welcome our next wrestler from the Tigers of Mumbai, Dangal. भैया इनकी हिम्मत और जज्बे पर नहीं करते शक। मुंबई दंगल के अंधेरों को रोशन करने आ रहा है उनका रेसलर दीपक। दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच और अब आप देख सकते हैं दीपक बेरवाल जो कि डेब्यू कर रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर। नवीन की जगह पर ये आए हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे नोरा फतेही से। जशा है उनके पास। Ladies and gentlemen, joining me is the glamorous Nora Fatehi and the owner of Haryana Thunders, Ms. Shreya. Thank you so much. Nora, a very warm welcome to you. We know that you are known for your incredible energy and love for sports. Yes, absolutely. So how excited are you to be joining Haryana Thunders? Oh, I'm ecstatic. I'm so excited. Actually, I'm a massive supporter of sports and uplifting the youth and pushing them in terms of getting out there. And I love the fact that you guys have provided a platform for the youth of India to be able to practice such a sport, which is a very difficult sport. It's not an easy sport. So shout out to Haryana Thunders. Shout out to all the teams. They were incredible today. And any message you would like to give to the team and the fans? All the best, all the best. Keep that spirit of sportsmanship, keep the spirit of the passion going, and never give up, self-determination. And Nora, what inspired you to be associated with the team and here at the Pro Wrestling League? Well, you know what, I'm all about, sports. I performed at the World Cup in 2022 at the closing ceremony. I just recently attended AFCON in Morocco and supported Morocco while they played football. But at the same time, I do have a passion of supporting the Indian youths. Everybody who's in India who's passionate about any type of sport, whether that's basketball, wrestling, doesn't matter. I want to be behind them. I want to support them. So if my presence here allows me to uplift wrestling and uplift the Indian youth, then why not, definitely. Absolutely. And Shreya, being a team owner, you must be really proud of your team today. Absolutely. The team has done really, really well. Absolutely humbled and proud. Superb, superb. Any message, very excited. Any message to the team and to the fans who are here to support I think you? they're doing wonderful and just keep the spirit on. We have an entire fan and family and friends here. So we are very, very excited and heartfelt thank you to Nora to join us. All right, well, thank you so much for joining us, guys, and I hope you Thank enjoy you. the rest And of the thank you evening. guys for inviting me. Thank you for having me. And all the best to all the teams. Thank you so much. धन्यवाद नोरा, धन्यवाद श्रेया। और ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, 5 मुकाबले, चारों महिलाओं के मुकाबले जीते हैं हरियाणा थंडर्स ने। और उसके बाद देखिए पुरुषों का मुकाबला शुरू हुआ। तुमुर तुलगा ने बाजी मारी 13-0 से। और उसके बाद अब मुकाबला कुछ ही देर में परविंदर और दीपक के बीच। भाई नोरा फतेही हो ग्राउंड पे और गर्मी के कारण लगे ना ब्रेक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट इट्स टाइम टू वेलकम आवर रेसलर दीपक। दर्शकों को इंतजार एक ऐसे पहलवान का जो प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर पहली बार आ रहा है। दीपक बेरवाल है इनका नाम और कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नवीन की जगह पर ही आ रहा है। और अगर आप देखें तो चौधरी बजय सिंह कुश्ती केंद्र डावड़ा हिसार में ये प्रैक्टिस करते हैं। राहुल बेरवाल इनके पर्सनल कोच हैं और इंजरी के बाद लौटे हैं। और डिफेंसिव जब ये लड़ते हैं तो बहुत हारते हैं, अक्सर देखा गया है। अटैकिंग लड़ते हैं तो वो इनको बहुत रास आता है।
तो जल्द ही रैंकिंग टूर्नामेंट में भी उतरने वाले हैं। एंड ये खिलाड़ी आफत है भैया, ऑपोजिशन की ये शामत है। जीत के जुनून के साथ अंदर आ रहे हैं हरियाणा थंडर्स के परविंदर, जी हाँ, रोहतक के अजायब गांव का ये पहलवान जो चंद्रमोहन से तो हारा, लेकिन उसके बाद यश को जिस तरह से इन्होंने हराया था वो बड़ा काबिले तारीफ था 14-8 से। और ये नेशनल चैंपियनशिप अहमदाबाद में भी उतरा था, आदर्श पाटिल से हार गए थे, लेकिन एंड्योरेंस की कमी नहीं है, थोड़ी सी कमी है। स्लो अटैक करते हैं, पहले एक पैर पकड़ते हैं, फिर दूसरे एक्शन पर आते हैं और दूसरे के अटैक का इंतजार करते हैं। कमर में थोड़ा खिंचाव था और कुछ जब खिलाड़ियों का कमर में खिंचाव होता है बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर परविंदर पूरी तरह से तैयार है। आप देखें 2 मुकाबले हारे हैं, यश को हराया था 8 के मुकाबले 14 अंकों से। और इस तरह से मुकाबले का हुआ शुभारंभ। और मेरे साथ है पूजा ढांडा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार विजेता। क्या चल रहा होगा इस वक्त दीपक के मन में, क्योंकि वो डेब्यूटेंट हैं, पहली बार उतर रहे हैं इस मंच पर। बिल्कुल मनोज, दीपक बेरवाल जो 5 साल तक मेजर इंजरीज का सामना करते हुए पीडब्ल्यूएल के मंच पर पहुंचे हैं और एक एथलीट के लिए बहुत टफ रहता है कि वो इतनी इंजरीज से उभर के और एक आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर आए। और काफी थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि अच्छा परफॉर्म करना है, कमबैक करना है, और उसी की कोशिश में मुझे लग रहा है आज दीपक होंगे कि कहीं से इस बाउट को हम जीते, अच्छा स्कोर करें। हालांकि मुंबई की टीम ये मैच हार चुकी है, बट फिर भी एक पर्सनल परफॉर्मेंस के तौर पर वो ये मैच अगर जीतते हैं तो इजाफा। और ये देखिए इसी के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ लेग अटैक किया और पीछे आने में कामयाब रहे। 2 अंक यहाँ पर हासिल किए दीपक ने। जी हाँ, बहुत अच्छी शुरुआत की है दीपक ने इस मंच पर, 2-0 बनाया स्कोर और यहाँ से बाहर अंदाज लगाना चाह रहे थे, उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। और इस वक्त नोरा फतेही भी सोच रही होंगी कि भाई ये क्या हो गया, इनको और ज्यादा अंक क्यों नहीं मिले। बिल्कुल समझने की कोशिश कर रही है कि कुश्ती किस तरीके का खेल है। और यहाँ पर जो है दीपक के पास इस समय देखिए खूबसूरती के साथ दीपक ने सिंगल लेग अटैक किया था और पीछे आने में कामयाब हुए, 2 अंक हासिल किए। और इसी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि इंजरी किसी भी रेसलर को, किसी भी एथलीट को रोक नहीं सकती है यदि उनके इरादे मजबूत हो तो। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले परविंदर को हिसार दंगल में इन्होंने हराया था और इसके साथ ही यहाँ जद्दोजहद बाहर धकेलने की और यहाँ कोशिश की थी कि बाहर वो ना जाएं, कम से कम वहां से अटैक करें। यहाँ पर खेमे लगाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ परविंदर मुकाबले में, और यहाँ खेमे लगाया भी उन्होंने। बिल्कुल स्कोर एक बार दीपक के पक्ष में, एक बार परविंदर के पक्ष में जा रहे हैं और देखना होगा फाइनल स्कोर क्या है। यहाँ 4 अंक दीपक के हैं और 2 परविंदर के। जो लास्ट अटैक हुआ है उसमें दोनों ही पहलवान को 2-2 अंक दिए गए हैं, परंतु अभी रेफरीज डिस्कस करना चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। यही कुश्ती की बहुत बड़ी खूबी है। ये देखिए यहाँ पर टेक डाउन किया, टेक डाउन करने के साथ ही क्योंकि पोजीशन अभी नहीं ली गई थी, यहाँ खेमे की पोजीशन बनी और ये बहुत ही स्वाभाविक तौर पर परविंदर ने यहाँ पर अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ परविंदर के बनते हैं 2 अंक और यहाँ पर ये गदा लोड कर रहे हैं या बांगड़ी, ये देखिए बैंगड़ी लगाने की कोशिश यहाँ पर जो है वो दीपक की तरफ से की गई थी जो सक्सेसफुल रही, इसलिए 2 पॉइंट परविंदर को, जो खेमे की पोजीशन पे उन्होंने डेंजर किया था दीपक को, उसके दिए गए। और फिर बैंगड़ी लगा के जो परविंदर को डेंजर किया वो 2 अंक वहां पर दीपक को दिए गए। तो इस तरह से एक मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता हुआ यहाँ नोएडा स्टेडियम में। दर्शक अभिभूत है, बहुत जबरदस्त इंतजार कर रहे हैं किसी टेक्निक का, और ये बात समझी भी जा सकती है। मुकाबला बेशक हरियाणा को निर्णायक बढ़त हासिल हो चुकी हो, लेकिन मुंबई ने अभी घुटने नहीं टेके हैं। अभी अमन सहरावत को भी आना है और अभी मुकुल दहिया को भी आना है, जिन्हें अब तक कोई हरा नहीं पाया है। बिल्कुल, और चाहे हरियाणा टीम में या किसी दूसरी टीम में, दोनों ही पहलवान जो है वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दीपक भी हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के पहलवान हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। हिसार से काफी पहलवान प्रो रेसलिंग लीग में आए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तो हिसार वर्सेस रोहतक ये मुकाबला चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल गुप्ता को, आप देख सकते हैं फारूकी साहब को,
और यहाँ 4-2 की महत्वपूर्ण बढ़त दीपक के पक्ष में। रेसलिंग लीग और ये आप कर्णधारों को देख सकते हैं, डायन फारूकी और अखिल गुप्ता। जी हाँ, सीईओ हैं अखिल गुप्ता प्रो रेसलिंग लीग के और चेयरमैन हैं डायन फारूकी। और इनकी उपज और इन्होंने मिलकर फेडरेशन के साथ जो कदम उठाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं और संजय कुमार सिंह जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर कदम ताल किया उन्होंने, और उसका परिणाम है ये प्रो रेसलिंग लीग और जो विशिष्ट बनाता है पूजा इस आयोजन को। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे याद है जब 2017 में मैं भी फर्स्ट टाइम PWL में डेब्यू कर रही थी, तो मैं भी इंजरी से आई थी और प्रो रेसलिंग लीग ने जो है मेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा दिया था। जिस तरीके से आज दीपक परफॉर्म कर रहे हैं इंजरी के बाद, निसंदेह उन्हें भी प्रो रेसलिंग लीग का बहुत फायदा होगा। सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश की है, एंकल को पकड़ा हुआ है। देखना है क्या परविंदर यहाँ पर स्कोर पर कर पाएंगे या दीपक अपने अटैक में सक्सेसफुल रहेंगे। और यहाँ 2 अंक जो है दीपक ने हासिल किए हैं परविंदर को डेंजर करके। कुश्ती के स्कोर को बनाया, टेनिस का स्कोर 6-2 से बढ़त। और अब यहाँ पर इम्तिहान है परविंदर का कि वो यहाँ पर खेमे की पोजीशन बनाए। जी हाँ, खेमे की पोजीशन का आधी अवस्था उन्होंने बनाई और इसको यदि पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे तो अंक मिलेंगे। और रेफरी की विसल बीच में बजी और 2 अंक का इजाफा हुआ परविंदर के स्कोर में। अच्छा खेमे लगाया भाई उन्होंने और अंतर केवल 2 अंकों का रह गया है दोनों रेसलर्स के बीच। बिल्कुल, खेमे एक ऐसा अटैक है जब अपोनेंट आपको लेग अटैक करता है और आपके यदि खेमे अच्छे हैं तो वो आपको कुश्ती जिताने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। और वही परविंदर ने किया। उन्होंने जैसे दीपक ने लेग अटैक किया वहीं से उन्होंने खेमे लगाया और 2 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी दीपक बनाए हुए हैं। तो आप ये दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेग अटैक किया था, आप दाईं तरफ देख सकते हैं। और लेग अटैक करने के साथ ही जिस तरह से उन्होंने यहाँ इस पोजीशन पर आकर, एक सुनहरा अवसर था उनके पास, पैरों को पूजा छोड़ा नहीं था उन्होंने। बिल्कुल, ये देखिए एंकल अटैक से पहले डेंजर जो है वो दीपक करने में कामयाब हुए। डेंजर जब 90 डिग्री से ऊपर आप अपोनेंट के कंधों को मैट की तरफ लगा देते हो तो वो डेंजर पोजीशन है और उसके आपको 2 अंक दिए जाते हैं। दीपक ने जैसे 2 अंक लिए, यहाँ पर देखिए खूबसूरती के साथ खेमे किया परविंदर ने और फायदा उठाया। और ये दूसरा जब खेमे लगा तब तक जो है वो विसल बच चुकी थी, इसलिए उसका स्कोर नहीं दिया गया। सही बात है, जब चिड़िया खेत चुग जाए तो उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन उससे पहले 2 अंक वो बटोर चुके थे। मुकाबला बेहद रोमांचक और कैरी पर खूबसूरती के साथ यहाँ क्या वो लिफ्ट करने में कामयाब हो गए। जी हाँ, लिफ्ट किया। अब यहाँ से क्या डेंजर पोजीशन में गिराएंगे, तभी मिलेंगे 4 अंक, लेकिन अपने दांव में लगता है उलझ रहे हैं। लेकिन यहाँ से सुनहरा अवसर और ये पावर मिनट का रोमांच शुरू हो गया। यहाँ से जितने आप अंक बटोरेंगे उसके दुगने अंक आपको मिलेंगे। बिल्कुल, पावर मिनट जिसमें एथलीट जो है वो डबल पावर के साथ खेलता है, क्योंकि उसमें जितने अंक आप लेते हैं उतने ही आपको फ्री मिलते हैं। और यहाँ पर दोनों ही पहलवान के बीच में कश्मकश और कहीं ना कहीं 2 अंक की बढ़त और दीपक के पक्ष में प्लस 2 अंक और, क्योंकि पावर मिनट चल रहा है। यहाँ पर परविंदर भी पीछे आने में कामयाब रहे हैं और 2 अंक उन्हें यहाँ मिले हैं। चंद्र विजय को देख सकते हैं, यहाँ दर्शकों को देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भारंदाज की बहुत अच्छी ग्रिप है इस समय परविंदर के पक्ष में। लेकिन दिक्कत यही है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा रेसलिंग के अंदर, खाली लेग अटैक से बात नहीं बनती। मौका मिला था आपको भारंदाज का, वहां क्यों नहीं लगाया आपने भारंदाज? इसका मतलब है कि आपकी तैयारियां कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, यदि परविंदर वहां पर एक भारंदाज भी लगा देते तो मुकाबला बराबरी पे आ जाता और वो जो है वो जीतने वाले पहलवान बन जाते, क्योंकि वो बाद में अंक ले रहे थे। शशि भूषण प्रसाद जो कि कोच है हरियाणा के, और अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट किया गया है। सत्यदेव मलिक जो 1S कैटेगरी के रेफरी हैं, जो सर्वोच्च कैटेगरी होती है। परविंदर की तरफ से यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया था, बट शायद जो समय सीमा है कि 5 सेकंड के अंदर अटैक लगने के 5 सेकंड के अंदर ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, शायद वो जो है वो पूरी हो गई थी, जिस कारण जो है वो नहीं माना गया। और यहाँ पर आखिरी क्षणों में कुश्ती अंडर हुक किया था खूबसूरती के साथ, और उसके बाद ही जिस तरह से लेग अटैक, लेग से लेग को काटा, लेकिन समय इतना नहीं था। समय के साथ आपको ये सब चीजों को अंजाम तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल, और यहाँ पर मुंबई टाइगर की पहली जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं दीपक बेरवाल।
तो इस तरह से 10-6 के स्कोर से विजयी रहे दीपक और अपनी धमाकेदार आगाज कर दिया है उन्होंने दिखा दिया है कि अगर उन्हें पहले कभी मौका मिलता तो वो कुछ परिणाम और भी पलट सकते थे। लेकिन दीपक जो उम्मीदों के केंद्र है और उनसे भारत को भी भविष्य में बहुत उम्मीदें हैं। ये देखिए परंपरा हमारी, जिसमें कोई पहलवान जीतता है, चरण छूता है, अपने कोच का से आशीर्वाद लेता है और ये इस खेल को बहुत महान बनाता है। बिल्कुल, देखिए ये खूबसूरत पल इस कुश्ती के। यहाँ पर परविंदर की तरफ से लेग अटैक किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ दीपक ने डिफेंस किया यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर परविंदर द्वारा ऊपर उठा लिया गया था, बट उसके बावजूद जो है वो दीपक यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ डिफेंस के साथ 2 अंक हासिल करने में कामयाब रहे थे। देखिए इस मोमेंट पे उन्होंने डेंजर कर दिया था परविंदर को। जब आप 90 डिग्री से ज्यादा कद्दों को पेट की तरफ कर देते हैं तो वो डेंजर पोजीशन होती है। और 5 साल लगातार इंजरी से जूझने के बाद दीपक ने यहाँ आगाज कर दिया है कि उनका जीत का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, ना नींदें पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। वाह 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 वाह, ये शायद परविंदर भी ये सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ वक्त खत्म हो गया था और यहाँ पर जो है विजय श्री जो है दीपक को कर दिया गया। और इस तरह से 5-1 की बढ़त हरियाणा थंडर्स के पक्ष में। अलेक्जेंडर घोटसियानवस्की जो अभी तक जीते नहीं, उनका मुकाबला अनिरुद्ध गुलिया से।